Okay, what is actually a leukodystrophy? Leukodystrophy means basically it is a white matter disease. Okay, so leukodystrophy is nothing but it is a white matter disease. In the brain, we will have two important matters. One is gray matter and another one is white matter. So whenever we have got any neurological disease, so first step is always differentiate whether it is a white matter disease or whether it is a gray matter disease. Okay. So you may get a patient of cerebral palsy, you may get a patient of some neurological problem, you may get a patient of a neurobehavioral problem. Okay. You may get a patient of a structural neurological problem, जो भी है. First step is always you have to differentiate whether it is related to white matter or gray matter. What is white or gray matter? Gray matter is the portion where nucleus of the neuron is present. Gray matter is that area where nucleus of the neuron is present. Okay. So all the nucleus, we know that millions and millions of neurons are present in the brain. All these neurons will have one nucleus. Okay. So where all these nucleus are get collected, that area become the gray matter. Okay, that area become gray matter, and the axons of these neurons which are coming down, okay, they constitute the white matter. This is very similar to just like a rat, एक चूहा. ठीक है, आप सोचो कि 1000 चूहे एक साथ हैं, जहाँ पे वो चूहे का जो बॉडी पोर्शन है वो इकट्ठा हुआ है ना, वो ग्रे मैटर है, और उसका जो टेल है ना जो बाहर निकला है, वो सब जो है वाइट मैटर है. Okay, similarly in the brain, all the nucleus portion of the neurons and or the body portion of the neuron, that constitutes the gray matter, and axons and dendrites of the neurons, they constitute the white matter. Now if you see what is the function of these axons, function of the axon is to carry the neuronal impulse. What is the function of the gray matter? Gray matter or nucleus, nucleus is the one produce all the neurotransmitters and all those things. जितना भी जो है उसका जो काम करता है, that is body of the neuron. Tail of the neuron is responsible for carrying the neuronal impulse. Okay, so this is called as white matter. So all the neurons, they contain a axon which is considered as white matter, and a group of this white matter or axon itself is called as white matter or tracts. They are called as tracts. If I have got one peripheral nerve, what is that? उसका हेड कहाँ हो सकता, उसका बॉडी कहाँ है? उसका बॉडी यहाँ पे है, सिर में है, और उसका एक्सॉन इतना लंबा है कि वो स्पाइनल कॉर्ड तक आ गया. ओके, स्पाइनल कॉर्ड तक आ गया. बीच बीच में कभी कभी इंटर न्यूरॉन्स भी आ जाते हैं उसको कनेक्शन देने के लिए. और कुछ न्यूरॉन्स स्पेशली जो है पिरामिडल ट्रैक्ट्स का, पिरामिडल ट्रैक्ट्स आल्सो कॉल्ड एज एंटीरियर सेरेब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट्स, ठीक है, जो आपका पिरामिडल ट्रैक्ट्स आता था, तो दे आर वेरी लॉन्ग. उसका जो एक्सॉन्स है वो बहुत लंबा है. दे स्टार्ट फ्रॉम द 5th लेयर ऑफ द सेरेब्रम विच इज कॉल्ड डेल्टा सेल्स बोलते हैं उसको, डेल्टा टाइप ऑफ न्यूरॉन सेल्स. उसका क्या है, न्यूरॉन बहुत लंबा है, वो कभी कभी कॉकिक्स तक आ जाता है यहाँ से, इतना लंबा है उसका एक्सॉन्स, एंड दे आर हाईली माइलिनेटेड. ओके, दिस इज अ कॉन्सेप्ट. नाउ फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस इज द डिसीज ऑफ द ट्रैक्ट or whether this is a disease of a nucleus, that is whether it is a disease of the gray matter or a disease of the white matter. Now nucleus constitutes all nucleus, the main function of this nucleus is all the cognition function. जो ग्रे मैटर मैंने बताया ना, जो न्यूक्लियस की या बॉडी से बनता है न्यूरॉन का, वहाँ पे आपका सब कुछ स्टोर होता है. मेमोरी स्टोर होता है, कैसे बात करना है, वर्निक्स एरिया वाला जो डिक्शनरी है, मेंटल डिक्शनरी है, तो ये सब जो स्टोर होता है, ये सभी जो है स्टोर होता है, दैट इज इन दी ग्रे मैटर. सो वन थिंग इज वेरी क्लियर, इफ द कॉग्निशन इज गेट अफेक्टेड, व्हाट इट सजेस्ट, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ग्रे मैटर. ओके, एंड if there is a seizure or some fits like condition, seizures, or then what it suggests, again there is a involvement of the gray matter. न्यूरॉन्स जो है एक्सॉन की वजह से कभी सीजर नहीं आता है, एक्सॉन तो कैरी करता है ना. सीजर तो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है. एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इज बिकॉज ऑफ ओवर एक्साइटेशन. ये जो भी एक्साइटेशन होगा ये सेल पोर्शन में होगा, बॉडी पोर्शन में होगा, एक्सॉन में क्या होगा.
Okay, so gray matter disorders will have two important. One is cognition is affected. Okay, cognition in the sense higher mental functions are get affected. ठीक है, मेमोरी इज अफेक्टेड, स्पीच इज अफेक्टेड, ही इज़ नॉट एबल टू थिंक. ठीक है, उसका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग चला गया, ओरिएंटेशन चला गया, ओरिएंटेशन ऑफ टाइम एंड स्पेस नहीं है उसको. ठीक है, मेमोरी नहीं है, भूल गया सब कुछ, हेलुसिनेशंस है. तो ये सब क्या इंडिकेट करता है, आपका ग्रे मैटर चला गया. ठीक है, और वाइट मैटर, और दूसरा जो है ग्रे मैटर में आता है सीजर. So seizure and higher mental functions, if they are get affected, directly it suggests that this is a gray matter disorder. Gray matter disorder. Cerebral palsy is basically gray matter disorder. Cerebral palsy में जो न्यूक्लियस है उसी का डिजेनरेशन होता है या एट्रोपी होता है ना, यही होता है. लेटर स्टेज में ट्रैक्स भी इन्वॉल्व होता है, वो अलग बात ना, अभी हम मिक्स नहीं करेंगे उसको. ना व्हाट अबाउट द ट्रैक्स? See, tracts are present from the brain to the spinal cord and different parts of the body. Tracts are also present within the brain. ये जो फाइबर्स है, ट्रैक्स है, राइट साइड ऑफ द ब्रेन और लेफ्ट साइड को कनेक्ट करने वाला ब्रेन भी है, कार्पस कैलोसम है. ठीक है, और आगे से एंटीरियर ट्रैक्स भी है, पोस्टीरियर ट्रैक्स भी है, कुछ ऑब्लिक ट्रैक्स भी है, बहुत सारे ट्रैक्स है एक दूसरे को कनेक्ट करने वाला. और जितना भी ये सब ट्रैक्स है, ये क्या बन गया, किससे बनता है, वाइट मैटर से. ठीक है, सो वेन एवर देर इज प्रॉब्लम इन दिस ट्रैक, व्हाट इज द मेन फंक्शन? न्यूरॉन ट्रांसमिशन इज नॉट करेक्ट, दैट विल बी डिस्टर्ब. न्यूरॉन का ट्रांसमिशन डिस्टर्ब होगा. सो जितना भी हमारा मस्कुलर एक्टिविटी है वो किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द न्यूरॉनल, है ना. हर मसल के लिए एक स्पाइनल कॉर्ड नर्व सप्लाई करता है, क्रेनियल नर्व से, उसका भी ट्रैक्स है. ठीक है, और दो क्रेनियल नर्व को कनेक्ट करने वाला भी कुछ ट्रैक्स है. ठीक है, सूडो बल्बार फाइबर्स है, बल्बार फाइबर्स है. सो जहां जहां पे भी वेन एवर देर इज ए कनेक्शन, इट इज ओनली द फंक्शन ऑफ वाइट मैटर. सो व्हेन वाइट मैटर इज अफेक्टेड, द मेन प्रॉब्लम इज यू विल हैव लॉस ऑफ मूवमेंट्स. You have loss of the movement. Tracks are also there related to the sensory tracks. Sensation, cold sensation, touch sensation, heat sensation, that is also carried to the brain through the tracks only. They are also made of axons. So, in case of white matter disease, sensations may be get affected. What the point? Sensations are get affected. So, this is a basic difference between white matter and gray matter. What are the most common gray matters? Gray matter disorders are more, because usually any of the injury which occurs to the brain, most of the time it also affects the gray matter. Okay, and sometimes the injury may also affect the white matter, but some of the very typical white matter disorders are there. One of them is leukodystrophy. Another disease is that is Alexander's disease. Another disease is there, Leigh's disease, Leigh, Leigh's disease. Another disease is there, Krabbe's disease. Krabbe's disease. Now, what are all the disorders that I have mentioned now? They are inherited type of leukodystrophies. दूसरा मेटाक्रोमोटिक, वो भी है. Okay. So now we shall see about the white matter only. These are some of the common disorders. कैसे है आपको पता चल गया? In terms of Ayurveda, if you are talking, how you will identify? If there is change in the higher mental function, वाणी में चेंज होगा, उसका चित्त में होगा, शील में चेंज होगा, है ना. ये सभी चीज़ों में उसमें चेंजेस आएगा ग्रे मैटर डिसऑर्डर में. बट वाइट मैटर डिसऑर्डर में ये कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, और सीजर आएगा स्पेशली. ठीक है, आप जो भी है सीजर को आप बोलो कि अपस्मार है, उन्माद है, जो भी है वो सब आएगा. बट व्हेन यू टॉक अबाउट व्हाइट मैटर डिसऑर्डर्स, देयर इज नो सच थिंग्स. ओनली आइदर सेंसरी और मोटार फंक्शंस आर गेट अफेक्टेड. मोटार मूवमेंट्स और सेंसरी फंक्शंस आर गेट अफेक्टेड बिकॉज दे आर कैरिड थ्रू द ट्रैक्स. गॉट द पॉइंट? नाउ व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द ट्रैक्स? ट्रैक्स आर नथिंग बट द नर्व्स. जो हम बोलते हैं नर्व्स, वही तो है ट्रैक्स. ये नर्व्स में जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? माइलिन, माइलिनेशन है.
Peripheral nerves are myelinated. They contain the Schwann cells. They contain the myelin sheath. Myelin sheath. Okay. And the neurons which are present in the brain and neurons which are present in the peripheral nerve, there is one basic difference. Neurons which are present in the brain, so they are made up of oligodendrocytes. They are also the neuronal cells. They are made up of the neuronal cells. They are covered by the oligodendrocytes. Whereas the peripheral nerves, they contain a sheath called as myelin sheath. This myelin sheath helps for the fast transmission of the neurons. Fast transmission of the neurons. Okay. Now what happens? There is problem with the myelination. Suppose if there is a problem with the myelination, myelin sheath ठीक से नहीं बन रहा है, myelin sheath से ठीक से नहीं बन रहा है, उसके लिए बहुत सारे कारण हैं. आपको पता होगा myelin sheath nodes of Raynaud's, so they help for the fast conduction of the impulse. myelin sheath नहीं बन रहा है, इसके लिए कारण हो सकता है demyelination. ठीक है, पहला कारण होगा हाइपोमाइलिनेशन. मैलिनेशन जो बन रहा है वो बहुत कम है. दूसरा होता है कि डिसमाइलिनेशन. मैलिन शीथ जो बन रहा है वो एबनॉर्मल है, डिस. और डीमाइलिनेशन, मैलिन शीथ जो बन गया है, जो पहले बन गया था वो अभी चला गया, डीजनरेशन हो गया, डीमाइलिनेशन हो गया. सो दीज आर द थ्री पॉसिबिलिटीज बिकॉज ऑफ विच ए मैलिन शीथ कैन गेट अफेक्टेड. Myelin sheath can get affected by two things. Maybe because of the acquired causes and maybe because of the congenital causes or genetic causes. Okay. Acquired causes means there is some bacterial infection taking place in the myelin sheath and because of which myelin production is decreased. ठीक है, बीच बीच में पैच आ गया. ठीक है, and that leads to the problem. Okay. Some bacterial infection, some autoimmune disorders. मैलिन शीथ के अगेंस्ट कुछ ऑटो एंटीबॉडीज बॉडी प्रोड्यूस करता है, वो जाके उस मैलिन शीथ को डिस्ट्रॉय करता है, तब जाके हो सकता है. कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ सम टॉक्सिसिटी, दिस कैन हैपन. दिस इज इन केस ऑफ एक्वायर. whereas the cause for the genetic is there is some genetic abnormality in the production of the protein which is required for the formation of a myelin. मैलिन शीथ को बनाने के लिए एक जो प्रोटीन है, वो जो प्रोटीन को जो बनाने वाला जो जीन है वो एबनॉर्मल है, म्यूटेंट है, इसकी वजह से वो नहीं बन रहा है, तो इसलिए आपका मैलिन शीथ नहीं बन रहा. ठीक है. सो व्हेन देयर इज नो मैलिन शीथ, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, योर ट्रांसमिशन इज अफेक्टेड. ओके, ट्रांसमिशन इज अफेक्टेड. सो फर्स्ट सिम्टम विल बी ऑलवेज व्हाट, मोटार डिसेबिलिटी फॉलोड बाय सेंसरी डिसेबिलिटी. And if you look at the intellectual level of the patient, he is okay. Higher mental functions, it is okay, no problem, सब कुछ ऐसा चल रहा है. But patient is losing all the motor movements one by one. Patient is losing all the sensory perception one by one. Why? Because myelin sheath नहीं है, उसका डिजेनरेशन चल रहा है या प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है. तो नहीं होगा तो उसका जो भी आप सेंसेशन देंगे वो तो ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि मैलिन शीथ बीच में है ही नहीं. ठीक है, या ऊपर से अगर आना है तो वो भी नहीं है. सो फर्स्ट पेशेंट विल हैव व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि द प्रोडक्शन ऑफ द सिम्टम्स आर वेरी ग्रेजुअल. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, क्योंकि प्रॉब्लम है मैलिन शीथ का प्रोडक्शन में. तो ये प्रॉब्लम तो चालू रहेगा अगर वो जेनेटिक कॉज की वजह से है तो, है ना. धीरे 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 जा करके जो है आपका सभी जो है नर्व्स का मैलिन शीथ खत्म हो जाएगा. तो प्रॉब्लम विल बी प्रोग्रेसिव इन द सेंस, फर्स्ट यू विल हैव ओनली प्रॉब्लम इन ओपनिंग द माउथ, मोटर मूवमेंट. और इन द इनिशियल फेज इन्फेंट में बी ओनली हैविंग द प्रॉब्लम फॉर डिग्लूटेशन, अगेन मस्कुलर एक्टिविटी or churning, like that. Later he also start with the weakness of the one upper limb. So then in the due course of the time it spread to the second upper limb. Okay, then to the trunk muscles, then to the lower limbs. Okay, so like this, so usually gradually progressively patient become a paraplegic and quadriplegic. Okay, so this is how the progression starts.
ठीक है, उसको बात करने में प्रॉब्लम है, स्पीच में प्रॉब्लम है, आई ओपनिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है, डिग्लूटेशन में प्रॉब्लम है, चर्निंग में प्रॉब्लम है, तो शुरू में ये फीडिंग, मदर विल कम विद फीडिंग प्रॉब्लम, और कुछ नहीं पता है उस टाइम में, ठीक है. सो ग्रेजुअली देन ocular signs will be there. There may be sudden development of the squint or drooping to the sometime, because here these are also muscles, they are also supplied by the nerves. Nerves contain the myelin, there is no myelin, therefore the problem is there. So this is the pattern, slowly progressive disorder of the neurological system related to the white matter, that is the cause of the leukodystrophy. This is a white matter, basically this is a white matter disease. Now sometimes some of the metabolic problems may also cause this particular white matter disease. Okay, some of the toxic metabolites are produced in our body. For example, दूसरा कोई एक metabolic inborn error है पेशेंट को, ठीक है, और वो जो inborn error की वजह से पर्टिकुलर कोई बॉडी का जो भी एक प्रोडक्ट है, प्रोटीन है, उसका मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो रहा है. जब उसका मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो रहा है तो उससे कुछ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो आधा ही पच रहा है ना, तो आधा जो पचा हुआ जो प्रोटीन है वो बहुत डेंजरस है, वो टॉक्सिक बन सकता है. प्रोटीन में नाइट्रोजन है, अमोनिया है, तो इसलिए जो है वो टॉक्सिक बन सकता है. सो वो जो टॉक्सिक मटेरियल जब इकट्ठा होगा बॉडी में, दिस टॉक्सिक प्रोडक्ट में गो एंड ऑल्सो डैमेज द myelin sheath. So because of some other metabolic disorders also, sometimes this myelin sheath may be get affected. Okay, so this is the two basic categories. Okay, now the question is, nerves are there in the periphery, but sometimes some of the peripheral nerves are also there in the cranium also. If you take the optic nerve यहाँ पे जो आई वाला एरिया में ऐसे अंदर ऑप्टिक कयास्मा तक जब जाएगा तो बेसिकली वो एक क्रेनियल नर्व है, ठीक है, और उसमें मायलिन शीथ है, एंड दे आर मेड अप ऑफ द स्क्वैन सेलन. और उसके बाद ऑप्टिक कयास्मा के अंदर जो जाएगा ना वो, तो उसके बाद एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स. व्हाट द पॉइंट, इट इज मेड अप ऑफ ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स. सो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, जहाँ पे मायलिन शीथ है वहीं पे आएगा, अंदर तो नहीं आएगा. ओके, सो नाउ समटाइम इट विल गिव ए कंफ्यूजन विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस. ओके, सी मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम रिलेटेड टू द myelin sheath. myelin sheath का डैमेज होता है. यूजुअली मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑकर्स बिकॉज ऑफ ऑटोइम्यून कॉज. ऑटोइम्यून कॉज की वजह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस आता है. क्या होता है, कुछ ऑटो एंटीबॉडीज बॉडी में प्रोड्यूस होता है जो जाके ऑप्टिक नर्व का जो myelin sheath है, जो पेरिफेरल मोस्ट पार्ट में है, उसको डैमेज करता है. तो ऑप्टिक नर्व यहाँ से जो है ठीक से सेंसेशन को अंदर भेज नहीं पाता है. सो देयर पेशेंट विल हैव प्रॉब्लम इन वॉकिंग. देखे होंगे आप मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट. सो वो जो है विजन, दैट मीन्स आइज प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेन द बैलेंस, है ना. आंख बंद करके तो चलना मुश्किल है, सबको पता है ना. सो आंख का जो है ये सेंसेशन अंदर नहीं गया ना, तो वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए दिक्कत होगी. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इन द रॉम्बक्स टेस्ट. रॉम्बक्स टेस्ट जब हम करते हैं तो पेशेंट को आंख बंद करने के लिए बोलते हैं, ठीक है. तो इट ऑल्सो प्लेस ए वेरी गुड रोल इन द इक्विलिब्रियम. नाउ मल्टीपल स्क्लेरोसिस वेयर द ऑप्टिक नर्व, दैट पोर्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व विच कंटेन्स द myelin sheath, that is get affected. So leukodystrophies in the initial part may confuse with multiple sclerosis. मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ ये कंफ्यूज कर सकता है शुरू में. बट मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है कि एक लोकलाइज्ड एरिया में होता है ना, सभी में नहीं होता है. मल्टीपल स्क्लेरोसिस बेसिकली इट इज अ डिसीज ऑफ द सेंट्रल नर्व सिस्टम, CNS. विद इन द सेंट्रल नर्व सिस्टम जहाँ पे myelin sheath है उसको इफेक्ट करता है. और मल्टीपल स्क्लेरोसिस पेरिफेरल नर्व्स में नहीं होता है, समझ रहे हो ना. मल्टीपल स्क्लेरोसिस पीछे के नीचे के नर्व्स में नहीं होता, ठीक है. एनीवे, सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग. सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ leukodystrophy. Leukodystrophy is basically one of the white matter disorder. Now let us see what you understand this in our Ayurveda. Okay, कर्मक्षय is there, no? There is कर्मक्षय. आप जो देख रहे हैं इसमें धीरे धीरे जो है कर्मक्षय हो रहा है, ठीक है. पहले एक लिंग में होगा जिसको हम बोलते हैं एकांगवात हो गया उसको, ठीक है. दो में हो गया, दोनों लिंग चला गया तो हम बोलेंगे उसको अर्धांगवात हो गया. और उसके बाद हम बोलेंगे कि सर्वांगवात हो गया, सब चारों चला गया. और बीच में हम बोलेंगे जब ऊपर का नीचे का चला गया तो हम बोलेंगे उसको पक्षाघात हो गया.
ठीक है. So we know that this whole thing is nothing but a type of vata vyadi. This is a consequence of vata vyadi. Okay. Now vata vyadi which is happening here, we know that there are two important causes for vata vyadi. One is margavarodajanya and another one is dhatukshaya. ठीक है. Now where you consider this is also a vata vyadi. कर्मक्षय is there. पैरालिसिस भी हो रहा है इसमें, एकांगवाद भी हो रहा है और सर्वांगवाद भी हो रहा है, सब कुछ आ रहा है इसमें भी. आक्षेपक वगैरह नहीं है. देयर इज नो सीजर. अंडरस्टैंड, सीजर इज ऑलवेज, whenever सीजर present it indicates there is involvement of the gray matter. Okay, so of course this particular demyelination also in future stage may lead to involvement of the gray matter. जैसा ज़्यादा प्रोग्रेसिव होता जाएगा, वाइट मैटर पूरा खत्म हो गया, उसके बाद जो है वो ग्रे मैटर को इन्वॉल्व करेगा. ठीक है, बट इनिशियली नहीं करेगा, शुरू में नहीं करेगा. नो व्हाट यू अंडरस्टैंड इज दिस इज धातुक्षय जन्य वात व्याधि. व्हाई? बिकॉज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्गवरोध जन्य वात व्याधि एंड धातुक्षय जन्य वात व्याधि? मार्गवरोध जन्य वात व्याधि इज ऑलवेज ऑफ सडन इन ऑनसेट. सडन ऑनसेट. किसी पेशेंट को पैरालिसिस होता है, ठीक है, पैरालिसिस हो गया, आपने कॉज देखा, कॉज तो एम्बोलिज्म है, कॉज थ्रोम्बोसिस है, और कॉज जो है रप्चर ऑफ वेजल है. सो व्हाट इट इज? जो रक्त का जो मार्ग है उसमें जो अवरोध है इसकी वजह से हुआ. सो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्गावरोध जन्य व्यात व्याधिस आर ऑफ सडन ऑनसेट, whereas धातुक्षय जन्य वात व्याधिस आर ऑफ स्लो ऑनसेट, प्रोग्रेसिव. So this is what is seen in case of leukodystrophy. Leukodystrophy में कुछ भी चीज़ सडन नहीं हो रहा है, it takes decades. इतना सब होने पे बहुत साल लगता है. ठीक है. So this is one of the example of धातु क्षय जन्य वात व्याधि. And what treatment you will follow? You will follow the treatment principles of वात व्याधि. But धातु क्षय जन्य, स्पेशली पक्षाघात में उसने धातु क्षय में बताया कि कौन सा धातु क्षय होगा. उसने क्या बताया था? स्नायु, सिरा, कंडरा, दमनी, इसका शोष होगा, ऐसा बताया था. सो जब प्रैक्टिकली हम देखेंगे स्नायु, सिरा, कंडरा, दमनी, ये सब एक नर्व्स को ही इंडिकेट करता है. प्रेजेंट सिचुएशन में दे आर नथिंग बट द नर्व्स. तो उसी का जब शोष हो जाता है तो दिस प्रॉब्लम. सपोज स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी, this is also a धातुक्षय जन्य वात व्याधि. Different types of atrophies, धातुक्षय जन्य वात व्याधि. So treatment should be followed in terms of धातुक्षय जन्य वात व्याधि. Okay, now why it is not मार्गावरोध जन्य? मार्गावरोध जन्य वात व्याधि is always sudden onset. There are only 6 matters which cause sudden onset of disorder. ये तो आप हमेशा याद रखो. क्या है? दुनिया में मेडिकल फील्ड में सिर्फ 6 कॉज है जिसकी वजह से चीज़ें बहुत फास्ट होता है, उन्हें सडन ऑनसेट है. सडन ऑनसेट है. कोई भी सिम्टम किसी पेशेंट को, अभी तक वो सही था, सडनली ऑनसेट शुरू हो गया, तो आंख बंद करके ये 6 कॉज है, उससे बाहर है ही नहीं. आई एम मेकिंग इट वेरी इजी. ठीक है. ग्रेजुअल ऑनसेट है तो आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा. सडन अभी सही था, अभी शुरू हो गया, 10 मिनट में हूँ, 15 मिनट में हूँ. देयर आर ओनली 6 कॉजेस. नंबर 1 इज वैस्कुलर कॉज. There is some vascular cause which is cause for sudden onset. वैस्कुलर में वेजल रप्चर हो गया है ना, वेजल में थ्रोम्बोसिस हुआ, वेजल से जो है एम्बोलिज्म आ गया और वेजल कंप्रेस हुआ. ठीक है, वेजल स्पाज्म हो गया, सडनली ब्लड सप्लाई कम हो गया, उसके बाद प्रेजेंटेशन आ गया. सडन प्रेजेंटेशंस आर पॉसिबल. नंबर 1 इन केस ऑफ एनी ऑफ द वैस्कुलर कॉज. पैरालिसिस, हेमीप्लीजिया इज ए सडन ऑनसेट है ना. पेशेंट अभी चल रहा है, तुरंत उसको हो जाता है. व्हाट इज द कॉज? कॉज इज वैस्कुलर. देयर इज रप्चर ऑफ द वेसल और देयर इज एम्बोलिज्म और देयर इज कार्डियक अरेस्ट. वैस्कुलर कॉज अगेन which happens very suddenly because of the embolism or blockage, sudden blockage of the coronary vessels. Not the point, number 1. Number 2 is mechanical causes. Mechanical causes. Mechanical includes so many, trauma, etc. Trauma ho gaya suddenly. Then the things may be very sudden. Okay? Number 3, obstructive causes. Suppose a child, a 2-year-old or 3-year-old kid, he consumes a foreign body. Suddenly उसको presentation आ गया.
it's because of the obstruction. Bronchial asthma exacerbations, sudden spasm of the bronchial tree, obstruction, that cause the presentation. So vascular, mechanical, obstruction. Third one is allergies. Allergies. Any of the allergies may cause sudden presentation. Suddenly मुझे यहाँ पे swelling आ गया, ठीक है, suddenly rash आ गया, suddenly sneezing आ गया. Nothing is possible. It's not because of virus. It's not because of bacteria. Bacteria, virus इतना जल्दी नहीं करता है. ठीक, it is always allergic. So allergic hypersensitivity reactions. So they occur suddenly. They always occur suddenly. Okay? Vascular हो गया, obstructive हो गया, mechanical हो गया, allergic हो गया. Next comes toxic. Okay? Toxic effects. Next one is drugs. Some drug reactions and all those things. Except this, in the medical field, you cannot find any other cause for sudden onset. कोई भी पेशेंट अगर बोलता है कि सडनली मेरा प्रेजेंटेशन है, 10 मिनट पहले मैं ठीक था, 10 मिनट पहले बच्चा ठीक था, उसके बाद ये हुआ, तो कॉज इज दिस. ऑल दीज 6 थिंग्स आर कंसिडर अंडर मार्गावरोधजन्य व्याधि. यहाँ पे हर जगह में मार्गावरोध हो रहा है. ओके, देयर इज मार्गावरोध. ऑफ कोर्स मार्गावरोध का जो कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है. इवन एथेरोस्क्लेरोसिस इज आल्सो कंसिडर एज अ टाइप ऑफ मार्गावरोध जो ग्रेजुअली चलता है. बट एथेरोस्क्लेरोसिस से एक पीस सेपरेट हो गया, एम्बोलिज्म बन गया, थ्रोम्बस बन गया, दैट इज अ सडन कॉन्सेप्ट. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट. दिस इज अ केस ऑफ धातुक्षयजन्य वातव्याधि. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फॉलो द ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ धातुक्षयजन्य वातव्याधि का चिकित्सा करना. दैट्स ऑल. सो दिस इज अबाउट द व्हाइट मैटर डिसऑर्डर, ल्यूकोडिस्ट्रोफी. सो वी हैव गॉट सो मेनी. सो हमें इसको कैटेगराइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब पेशेंट आता है. ठीक है, सिम्टम्स आता है वातव्याधि का, धातुक्षय कर्मक्षय का सिम्टम्स आता है ना, कि यहाँ पे वीकनेस है, यहाँ पे वीकनेस है, यहाँ पे लॉस है. ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम, क्या करना है इसको डिफरेंशिएट. सी यूजुअली व्हाट हैपेंस इज मार्गावरोधजन्य वातव्याधिस आर वेरी लेस इन चिल्ड्रन. वातव्याधि जो है मार्गावरोध से जो आने वाला है वो बहुत कम है ना. वैसे बड़ों में जो एडल्ट्स में जो होता है पक्षाघात, वैसे तो बच्चों में होता नहीं है. ठीक है, हमारा वहाँ पे पहले क्या होगा, सेरेब्रल इंसल्ट होगा, सेरेब्रल पाल्सी होगा, वहाँ पे होगा, और उसका कॉन्सिक्वेंस में जो है आपको हेमिप्लीजिया हो सकता है, मोनोप्लीजिया हो सकता है, क्वाड्रिप्लीजिया, पैराप्लीजिया हो सकता है. ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट. सिमिलरली दिस इज ल्यूकोडिस्ट्रोफी. देयर इज अनदर डिजीज विच इज कॉल्ड एज periventricular leukomalacia. Periventricular leukomalacia. Periventricular leukomalacia means this is common in the preterm babies, या immature babies, या low birth weight babies. Okay. Periventricular, peri means sides, surrounding. Ventricular, brain के अंदर जो ventricular system है उसका side. तो एक्चुअली ब्रेन के अंदर यू नो दैट ग्रे मैटर अंदर है और वाइट मैटर पूरा उसको बाहर से आ रहा है. ठीक है, तो ग्रे मैटर दिखता नहीं है पूरा, तो आपको पहले क्या दिखेगा, वाइट मैटर ही दिखेगा. ठीक है, तो ये जो वाइट मैटर बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड है कहाँ पे, पेरीवेंट्रिकुलर एरिया में. वेंट्रिकल्स है ना, जो आपका लैटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, उसका जो साइड, उसका जो सराउंडिंग एरिया में ना वाइट मैटर पूरा इकट्ठ होकर नीचे आने के लिए वहाँ पे पूरा इकट्ठा हो जाता है एकदम, पूरा बहुत सारे ट्रैक्स. ठीक है, अगर आप सोचो कि वहाँ का जो एरिया में जो पास हो रहा है, जो ये वाइट ट्रैक्स और वाइट मैटर का जो ट्रैक्स है, ट्रैक्स, सो इसमें प्री टर्म में क्या हो जाता है, इमेच्योरिटी की वजह से, अगेन सेम प्रीमेच्योरिटी की वजह से क्या होता है कि उसमें जो मैलिन शीथ वगैरह जो चाहिए उसका फॉर्मेशन ठीक से नहीं होता है. ठीक है, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और फैटी कंटेंट्स वगैरह जो उसके लिए चाहिए वो सब नहीं मिलता है. उसकी वजह से उसमें बीच बीच में होल्स आ जाता है या गैप्स आ जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमेलेसिया. ओके, सो दिस इज अबाउट, अगेन ल्यूको का मतलब यहाँ पे भी क्या है, वाइट मैटर. देयरफॉर दिस वर्ड्स आर यूज्ड. ल्यूको यहाँ पे ल्यूकोडिस्ट्रोफी है और वहाँ पे ल्यूकोमेलेसिया है.